السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین اور سب سے پہلے ایک اہم اعلان۔ 7 فروری کو تلنگانہ اسمبلی کا خصوصی اجلاس، جامع سروے اور SC زمرہ بندی پر ہوں گے مباحث۔ 5 فروری کو کابینہ کا ہوگا اجلاس۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے اجلاس میں بغیر مباحث کے بجٹ منظور، ایوان میں شورغل، BRS ارکان معطل، BJP نے درج کرایا احتجاج، مجلس نے اٹھائے عوامی مسائل۔ تحفظات میں اضافے سے متعلق کابینی اجلاس میں ہوگا فیصلہ، GHMC میں پارٹی کو مستحکم کرنے پر توجہ۔ فروری کے دوسرے ہفتے میں راہل گاندھی کا ہوگا اجلاس، مہیش کمار گوڑ کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت۔ اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس بھاری مقدار میں گانجے کے چاکلیٹ ضبط، ایک شخص گرفتار۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ QMax دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ QMax کوہینور بینکٹ ہال، 7 ٹومس روڈ، beside الصبا ہوٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کا 7 فروری کو خصوصی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ذات پات کی مردم شماری SC زمرہ بندی پر اسمبلی میں بحث ہوگی۔ 2 تاریخ کو جامع سروے کی رپورٹ کابینی ذیلی کمیٹی کے حوالے کی جائے گی۔ اس پر 5 فروری کو کابینہ اجلاس میں غور ہوگا۔ اس کے بعد 7 فروری کو ایوان اسمبلی میں جامع سروے اور SC زمرہ بندی پر خصوصی اجلاس میں بحث ہوگی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی میئر گجوال وجے لکشمی نے GHMC بجٹ کو بغیر کسی مباحث کے منظوری دے دی۔ GHMC کے آخری بجٹ اجلاس کا آغاز ہوا۔ اس میں سابق وزیر اعظم آنجہانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو خراج پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔
इसके बाद मेयर ने ऐवान से ख्वाहिश की कि बजट पर मुबाहिस किए जाएं, लेकिन बीआरएस सरकार ने वक्फे सवालात पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए ऐवान में शोरगुल शुरू कर दिया। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए मेयर ने जीएचएमसी का साल 2025-26 का 8,440 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया। मेयर ने बजट की तफसीलात पेश की। बगैर मुबाहिस के बजट को मंजूर करने पर बीआरएस और बीजेपी अरकान ने सख्त एहतजाज किया। వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్స్ వద్ద నిలిచిన నీరు తొందరగా వెళ్లేందుకు అవసరమైన ప్రదేశాల్లో వాటర్ హోల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ 1,00,000 లీటర్ల సామర్థ్యం నుండి సుమారు 4 లక్షల సామర్థ్యం గల నీరు నిలిచే విధంగా నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 100 కోట్లను మంజూరు చేసింది. సంపులో నిలిచిన నీరు తొలగించేందుకు విద్యుత్ మోటార్ ద్వారా స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ద్వారా తొలగించబడును. వరదల నేపథ్యంలో రోడ్డుపై నీరు నిలవకుండా ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా చేరవలసిన గమ్యస్థానానికి సకాలంలో చేరవచ్చును. హెడ్ సిటీ కార్యక్రమం ద్వారా 2,654 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించగా అందులో డిసెంబర్ 31 నాటికి 852.52 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. నగర ప్రజలు నగర మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగైన రవాణా వ్యవస్థతో పాటుగా జీహెచ్ఎంసీ ఆర్థిక భారం లేకుండా చేస్తున్న ప్రజా ప్రభుత్వానికి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का इजलास इब्तदा से ही अफरा तफरी का शिकार रहा। इजलास के आगाज पर बीआरएस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने वक्फे सवालात पर बहस का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स के साथ मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स खड़े हो गए और बीआरएस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मेयर की तरफ से यह पहले ही कहा गया कि वो पहले बजट पेश करना चाहती हैं, ताहम बीआरएस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स का कहना था कि अवामी मसाइल पर पहले मुबाहिस किए जाएं। इस दौरान कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स भी ऐवान के वस्त में पहुंच गए और बीआरएस के कॉरपोरेटर्स के साथ उनकी बहस तकरार होने लगी। फौरी मार्शल्स को तलब कर लिया गया और एहतजाजी कॉरपोरेटर्स को मेयर के हुक्म से बाहर कर दिया गया। बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने जीएचएमसी में धरना देते हुए एहतजाज किया। इससे पहले इजलास की कार्रवाई को 3 बार मुलतवी किया गया, जिसके बाद मेयर ने अरकान को मुअत्तल कर दिया। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वक्फे सवालात पर मुबाहिस का आगाज हुआ। मजलिस के रुकन कौंसल सुहेल महमूद कादरी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही बेकायदगियों पर तवज्जो दिलाई और कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारत में मुख्तलिफ दफातर को मुंतकिल किया गया है, जहां पर कोई सिक्योरिटी इंतजाम नहीं है। मजलिस के दीगर अरकान नसरीन सुल्ताना, सलीम बेग, रुकन असम्बली चार मीनार, मीर जुल्फ़िकार अली और दीगर ने अवामी मसाइल उठाए। इस इजलास में मजलिस के अरकान मुक़न्नना ने भी शिरकत की। हैदराबाद में अजीम तर बल्दिया के सदर टैंकबंड के पास बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने अनोखा एहतजाज किया और भीख मांगते हुए देखे गए। कॉरपोरेटर्स के लिए फंड्स की इजराई का मुतालबा करते हुए ये अनोखा एहतजाज किया गया। बीजेपी रुकन कौंसल वेंकटेश गदागर बनकर भीख मांगते देखे गए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने बीआरएस के कॉरपोरेटर्स की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बलदी कौंसिल इजलास में शहर की तरक्की और कांग्रेस की लापरवाही पर तवज्जो दिलाने पर कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस हुकूमत में हैदराबाद शहर को फंड्स नहीं दिया गया। शहर की आवाम की तरफ से सवाल करने पर ऐवान से बाहर कर दिया गया। केटीआर ने कहा कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वो तो खर्च नहीं किया गया, सिर्फ आदाद शुमार को तब्दील करके पेश किया गया है। कांग्रेस की इस धोखाबाजी को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार किए गए कॉरपोरेटर्स को फौरन रिहा करें। उन्होंने कहा कि जब तक बलदी नज़्म नस्क का कलमदान वज़ीर आला के पास होगा, हम सवाल करते रहेंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना में पीजी मेडिकल सेट में मुकामी कोटा खत्म करने पर तशवीश का इजहार किया है। इससे तेलंगाना के तालिब इल्मों को नुकसान होगा। रियासत में पीजी तालिब इल्म की तलब में इजाफा होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल से रुजू होने का मुतालबा किया। मरकजी वज़रा बीजेपी अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डालें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियासत को कई किस्म के नुकसान होंगे। तमिलनाडु हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से रुजू होने का फैसला किया है। हरीश राव ने बीआरएस कॉरपोरेटर्स की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए फंड्स देने का मुतालबा किया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में पार्टी को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की है।
मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जीएचएमसी में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके मेयर बनाएंगे। रियासत के 2 मरकजी वजीर होने के बाद भी प्रोजेक्ट्स के लिए कितने फंड्स लाए हैं और आज बीजेपी के कॉरपोरेटर का गदागर का किरदार अदा करके भीख मांगना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जात पात की मर्दमशुमारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसको मुकम्मल किया गया। 5 फरवरी को जात पात की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट काबीनी ज़ैली कमेटी के हवाले की जाएगी। काबीनी इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस की तरह वादे करने पर हम नहीं छोड़ेंगे, ताख़ीर से एक के बाद एक पर अमल करेंगे। फरवरी के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी के साथ सूर्यापेट में इजलास मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली, वज़रा, सीएम फोटो के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो लगाएं। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बापू घाट पर रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर ने महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। बापू घाट पर महात्मा गांधी की फोटो नुमाइश भी रखी गई थी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि एससी जुमराबंदी बराबर होगी। ये काम वजीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ विवेक या फिर कोई और बात करेंगे तो इसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि एम कृष्णा मादिगा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजीर आला वाहिद हैं जो मादिगा के हक पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। असेंबली में रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने मादिगा के लिए आवाज उठाई। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत की अवाम केसीआर से दूर होकर 420 दिन हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटी और 420 वादों में एक पर भी अमल नहीं हुआ। रियासती अवाम हर दिन केसीआर को याद कर रही है। कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत पुलिस कमांड कंट्रोल से चला रहे हैं। स्पीकर को सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। टीएनजीओस भवन संगारेड्डी में सद्भावना फोरम की जानिब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर हिंदुस्तानी जमहूरियत और हमारी जिम्मेदारियां इस उन्वान पर बात हुई। मौलाना हामिद मोहम्मद खान, डायरेक्टर शुबे तौसी व इस्तेहकाम जमात इस्लामी हिंद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मज़कूरा मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइजुद्दीन कॉन्फ्रेंस की निगरानी कर रहे थे। इस मौके पर बेरैया यादव, एमजी अनवर, सदर एमपीजे जिला संगारेड्डी, सैयद साबिर अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर के बाज मसरूफ इलाकों में कचरे की निकासी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया है कि कुंडापुर बोटानिकल गार्डन, माधवपुर इन ऑर्बिट मॉल, दुर्गम चेरू पार्क, हाईटेक सिटी, शिल्पारामम, फूड स्ट्रीट, हाईटेक आर्च और गच्ची बावली डीएफएल स्ट्रीट के फूड कोर्ट इलाके में ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियां दस्तयाब रहेंगी। कचरे की फौरी निकासी के लिए इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाएगा। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुक़न्नना मजलिस और रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने बलदिया के ओहदेदार एई राधिका के हमराह तुरुब बाजार और जामबाग के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का मुआयना किया, जहां सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 50 लाख रुपए लागती वीडीसीसी रोड के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क के कामों का मुआयना किया और एई राधिका को जल्द से जल्द रोड के कामों को मुकम्मल करवाने की हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे।
कुल हिंद सनती नुमाइश में कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ तहजीबी, अदबी, समाजी मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं ताकि इनमें जज्बे मसाबकत पैदा हो। नुमाइश सोसाइटी के रुकन नीता मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी तालिबात के लिए 20 कॉलेजेस चलाती है। इन कॉलेजेस की तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए हैं। उन्हें एक कामयाब शहरी बनाने के अलावा गृहस्थी के चैलेंजेस से निपटने की भी तरबियत दी जाती है। पकवान की क्लासेस रखी जाती हैं ताकि प्रोफेशनल तालीम के साथ गृहस्थी में भी वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। नुमाइश की लेडीज़ कन्वेनर संध्या दीपाला ने बताया कि ख़वातीन और लड़कियों की हौसला अफजाई बिलखुसूस तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबले, कल्चरल प्रोग्राम्स, फैशन शो भी रखे गए हैं। मेहंदी डिज़ाइनिंग, रंगोली, मुसव्वरी के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को एजाज़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नुमाइश के 45 दिन ख़वातीन की दिलचस्पी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम हर दिन रखा जाता है। सोसाइटी में लेडीज को एक एक काम को असाइन किया गया जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्ट से उसको निभाया जाता है। एंड लाइक हम लोग के लिए आर्टिसन कॉम्पिटिशन्स है जिसमें मेहंदी, हेयर ड्रेसिंग, पेंटिंग, रंगोली एंड कुकरी कॉम्पिटिशन्स भी रखा गया है। इसमें कल्चरल प्रोग्राम है, देन फैशन शो भी दिया गया है। इस टाइम ने बहुत अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे जितने भी 20 कॉलेजेस है उसके बच्चे हम लोग सेलेक्ट नहीं करते, वो खुद अपने इंटरेस्ट से आते हैं और यहाँ हमारा जो भी कंपटीशन है उसको बहुत ही इंट्रिकेसी से, मतलब डिटेल में हम लोग कंडक्ट करते हैं, जिसमें कितने कॉम्पिटिशन्स है उतने बच्चों को हम लोग पार्टिसिपेशन प्राइज भी देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड कंसोलेशन के बाद जो भी पार्टिसिपेट गया खाली हाथ नहीं जाते, उसको कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ हम ये 45-46 डेज तो वी रियली एंजॉय विद द स्पिरिट एंड वॉट एवर असाइंड जॉब इज देयर उसको हम लोग अच्छे से निभाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्साइज एसटीएफ ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास भारी मिकदार में राजस्थान से लाए गए गांजे के चॉकलेट्स को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक 120 पैकेट्स, जिसके हर पैक में 40 गांजे के चॉकलेट्स थे, कुकटपल्ली मुंतकिल किए जा रहे थे। बताया गया कि एक चॉकलेट को हॉस्पिटल्स के करीब 40 रुपए फी अदद फरोख्त किया जाता है। जब्त किए गए चॉकलेट्स की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में एक शख्स गोरख साहा को गिरफ्तार किया गया है और इसे सिकंदराबाद एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पेट बशीराबाद हुदूद के पद्मानगर के पास पार्क की हुई वैन में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा, ताहम वैन पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की तल्ला से सनसनी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक 29 जनवरी को एक शख्स की तरफ से 100 नंबर पर कॉल करते हुए एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की तल्ला दी गई। यौम जमहूरिया तकारीब के पेश नज़र पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही चौकस थी और इस फोन कॉल के मौसूल होते ही एयरपोर्ट की तलाशी ली गई। ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद ये इंकशाफ किया कि कामा रेड्डी का एक शहरी जिसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, इसने ये फोन किया था। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में तामीरी काम के दौरान पत्थर गिरने से मजदूर मां और बेटी की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक गौरानागिरी गुट्टा में तामीरी काम हो रहा था। इस दौरान पत्थर के गिरने से 2 मजदूर मुकामे वाक़े पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर मजदूर जख्मी हुए हैं। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर।
मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए दो लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंक्वेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 7 फरवरी को तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास, जामे सर्वे और SC ज़ुमराबंदी पर होंगे मुबाहिस। 5 फरवरी को काबीना का होगा इजलास। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इजलास में बगैर मुबाहिस के बजट मंजूर, ऐवान में शोरगुल, BRS अरकान मुअत्तल, बीजेपी ने दर्ज कराया एहतजाज, मजलिस ने उठाए अवामी मसाइल। तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतालिक काबीनी इजलास में होगा फैसला। GHMC में पार्टी को मुस्तहकम करने पर तवज्जो। फरवरी के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी का होगा इजलास। महेश कुमार गौर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास भारी मिकदार में गांजे के चॉकलेट जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।